गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, उसे याद करें और उस पर जो है मनन करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद, जहाँ पर लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। 1 John chapter 5 verse 5. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Amen. आप देखें यूहन्ना जो है here clearly defines he defined the overcomer and overcoming. कौन है ओवरकमर? ओवरकमर वो है जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता है या सन ऑफ गॉड मानता है। आप देखें यहाँ के अलावा यूहन्ना जो है चारों जगह कह चुका है प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। आप देखिए पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 10 पद। 1 John chapter 5 verse 10. Whoever believes in the Son of God accepts this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed the testimony God has given about his Son. आप देखें किसी अध्याय के पद 12 में 13 में 20 में 1 John chapter 5 verses 12 to 13 and verse 20. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true, and we are in him who is true by being in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Amen. आपने ध्यान दिया यूहन्ना कह रहा है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है उसमें जीवन भी नहीं है। आप देखें इसके अलावा यूहन्ना जो है कह रहा है कि पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 8 पद, 4 अध्याय 15 पद। 1 John chapter 3 verse 8 and 1 John chapter 4 verse 15. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Amen. आप देखें केवल यूहन्ना का जो गॉस्पेल है वही जो इस टर्म को इस्तेमाल करता है। हमने देखा है कैसे यूहन्ना इसे और भी सफाई के साथ कह रहा है। आप देखें मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 22 पद। 1 John chapter 2 verse 22. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. Amen. आप देखें कौन है झूठा, कौन है झूठे शिक्षक? वे लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को उसकी सामर्थ्य को जो है इनकार करते हैं। आप देखें जो टसल है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोग जो सच्चे हैं वो लोग तो यीशु को प्रभु मानते हैं, लेकिन जो झूठे लोग हैं वो नहीं मानते। आप देखें बार बार जो बात है कही जा रही है इस बात को। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 12 पद 17 पद। 1 John chapter 3 verses 12 and 17. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him?
because his own actions were evil and his brothers were righteous. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? आप देखें योना जो पूरी सफाई के साथ कह रहा है, हमने इस बात को जो है डिटेल से देखा है। कौन है झूठा? केन जो है इनका जो स्टैंडर्ड मार्क है, उसने परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा भाई कहाँ है? उन्हें फौरन जो है रिजेंट किया, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? अगर परमेश्वर चाहता उसका जवाब देता, हाँ यस यू आर योर ब्रदर्स कीपर। आप देखें कोई बात जो कही गई है, पहले योना उसका आगे देखें जो उसकी जो सारी टीचिंग्स है वहाँ कहा गया है। पहले योना उसका दूसरा अध्याय 13-14 पद। 1 John chapter 2 verses 13 and 14. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. आप देखें आज जो है योना फिर से एक बार कह रहा है, और कमर कौन है जो जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लिया? वो है जयवंत विजयी। वो का सेवक पौलुस कहता है वे मोर देन कॉन्करर्स, हम मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर हैं। आगे आप देखिए वही फेमस वर्स यूहन्ना 3:16। John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. आप देखें, Hallelujah. हालेलुया, Amen. डेथ एंड ग्रेव हैज बीन वन। जो मृत्यु है उस पर जय मिली है, जय पाई है ना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम जो हैं मौत पर जो है फतेहमंद हुए हैं, Hallelujah. जय पाई है। आप देखें यूहन्ना 3:16 बार बार इसी बात को कहता है। हम देखते हैं आगे रेवलेशन में, क्या देखते हैं रेवलेशन में? वहाँ है आशा के परे, जीवन के परे। रेवलेशन उसका दूसरा अध्याय पद 11। Revelation chapter 2 verse 11. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Amen. आप देखिए जिसके पास ये आशा है वो दूसरी मृत्यु उसकी नहीं होगी। वहीं हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। Revelation chapter 20 verse 6. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6वां पद. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. आप देखिए इस अध्याय के 14 और 21 पद में Revelation chapter 20 verse 14 and Revelation chapter 21 verse 8. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Amen. हमें नाम को मैंने कल कहा था, शैतान नहीं चाहता कि आप जो है
जेनेसिस पढ़ें, क्योंकि वहाँ जो है पाप की शुरुआत, शैतान नहीं चाहता कि आप जो है पढ़ें रेवलेशन, क्योंकि वहाँ है पाप का बंधा जाना, पाप का नाश होना। आप देखिए वहाँ जो मृत्यु है और जो नरक है, दोनों जो हैं अथाह नरक के कुंड में, अथाह में जो है डाले जाते हैं। हुए नाम जो है जयवंत, हुए नाम विक्टोरियस, ओवरकमर, ग्रीट योरसेल्फ, यू आर ओवरकमर। टेल योर हस्बैंड, टेल योर वाइफ, यू आर ओवरकमर। आप जो हैं जयवंत है ना, क्योंकि आपके मेरे प्रभु ने जो है जय पाई है, मौत पर जो है फतेहमंद हुआ है, जयवंत है। आप जो कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, यू आर ओवरकमर, आप जो हैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए फिर से एक बार जो है प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से कहें प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आप जो हैं आपने जयवंत हुए, मुझे जयवंत किया। हालेलुया। इस संसार में जब तक मैं और आप हैं, हम जो हैं जयवंत प्रभु के जयवंत लोग हैं। हालेलुया। फिर से एक बार एक दूसरे को याद दिलाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, आप जो हैं जयवंत हुए हैं। आप फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आप जयवंत हुए हैं और हमें जो है जयवंत बनाते हैं। हमारी जिस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें, यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। अमन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।